Now we'll see short problems. Calculate index number by simple aggregate method. Price of 2005 and price of 2007 it is given, and 4 commodities. Price of 4 commodities it is given A, B, C, D, and for price for 2000 also for 4 commodities it is given 162, 256, 257, 132 price of 2005, and 171, 164, 189, 145. These are the price for 2007. Now how to solve this? Computation of price index number, simple aggregate method it has given. So in this what you have to do? First you have to write commodity price in rupees 2005 P0, base year अपन यहाँ पर P0, and 2007 P1 we have to take, P0 and P1 we have to take it here. A B C D 4 commodities are there, no? A B C D 4 commodities in total. P0 का पूरा टोटल कर लेना है अपने को यहाँ पर. What is that? 162 plus 256 plus 257 plus 132. 807 we are getting the total of 2005. Now same way we have to do the total for P1 2007 prices. These are 171 plus 164 plus 189 plus 145. So the total is 669 we are getting. So calculation of index number by using simple aggregative method, we have this formula. P01 is equal to sigma P1 by P0 into 100. Sigma P1, whatever the total we got, that we have to substitute in the place of sigma P1 669. P1 669 and P0 807 divided by first we have to divide these two numbers. 669 divided by 669 divided by 807. We are getting it how much? 0.82. After dividing we are getting 0.8289 into 100 we have to do. So we are getting how much? 82.90. This is simple aggregate method. What we have to do in simple aggregate method? Commodities को पहले कॉपी कर लेना है ABCD, प्राइजेस ले लेना है 2005 और 2007 के, फिर अपने को टोटल करना है 2005 के प्राइजेस का, उसको सिग्मा P0 बोलते हैं. सो सिग्मा P0 807 आया. 2007 के प्राइजेस को अपन P1 डिनोट कर रहे हैं, तो इसका पूरे टोटल 669 को सिग्मा P1 बोलते हैं. फॉर्मूला क्या है अपने को सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में? सिग्मा P1 बाई P0 इंटू 100. जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है अपने को. 669 डिवाइडेड बाई 807 वी आर गेटिंग 0.8289. उसको इंटू 100 करना है. 82.90 वी गॉट द आंसर. Now next the prices for period 2016 to 2018. प्राइजेस अपने को 16, 17, 18 के 3 years के प्राइजेस दे दिए. कैलकुलेट सिंपल प्राइस इंडेक्स टेकिंग 2016 एज बेस ईयर. इसमें अपने को 2016 को बेस ईयर लेके अपने को प्राइस इंडेक्स मालूम करोगे. सो सिंपल प्राइस इंडेक्स P01 इज इक्वल टू P, दिस इज PN, whatever the base we are taking, no, that we have to take. So base year 2016 price is 25. So 25 divided by 25 for 2016. 25 divided by 25 into 100, 100 only. For next year 2016 के बेस लेके अपने को 2017 का मालूम करना है. ठीक है. इन दिस व्हाट वी आर डूइंग, 2016 को बेस लेके अपन 2017 का मालूम करना है. सो 2016 का बेस कितना है अपने को? 25 है. 2017 का 26, जो इसको दोनों को डिवाइड करने के बाद इंटू 100 करना है अपने को. सो 25 डिवाइडेड बाई 26, 25 डिवाइडेड बाई 26, 0.1 minute. Base, what you calculate simple price index 2016 as base year. So what you have to base means we have to take it in the denominator. So 26 divided by 25, 26 divided by 25, we are getting how much? 1.04. 1.04 into 100 we have to do, into 100. 104% we are getting. Same way when we are doing for 2018, 2016 base, 2018 we have to find. So 2018 price is 27 divided by base we are taking 26, 2016. So it will be 25 into 100. Now what you have to do? 27 divided by 25.
1.08 1.08 into 100 you have to do into 100 108% we are getting. It's clear no? Once again I'll repeat it. Calculate simple prices दे दिए अपने को इसमें सिर्फ 3 years के बेस जो है सो 2016 का लेके अपने को प्राइस इंडेक्स मालूम करना है. तो 2016 का प्राइस इंडेक्स क्या रहता 25 अपने को प्राइस है, उसका बेस जो है सो 25 है इंटू 100% आ जाता. 25 गेट्स कैंसल नो. सेम वैसे 2017 का जो है सो अपने को प्राइस 26 है, बेस कितना लेना है अपने को 25 इंटू 100. सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस इंटू 100 विल अपने को 104% आता. सेम वैसे 2018 का प्राइस 227 है, बेस अपने को 2016 का लेना है 25. अगर आपको एग्जाम में 2017 का बेस बोले तो ये पूरे डिनोमिनेटर में 26 आता. अगर 2018 को बेस लिए बोले तो पूरे डिनोमिनेटर्स में 27 लेना एंड इंटू 100 यू हैव टू डू. यू कैन गेट द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव मेथड. प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग अर्थमेटिक मीन. कमोडिटीज 1 2 3 4 6 कमोडिटीज दे दिए अपने को. कमोडिटीज लिख लिए अपन. प्राइजेस दे दिए 2015 के एंड 2016 के. प्राइस रिलेटिव क्या रहता P1/P0 इंटू 100. P1 की वैल्यू को P0 की वैल्यू से डिवाइड करके जो भी आंसर आता है इंटू 100 करे तो अपने को प्राइस रिलेटिव बनता. इट्स क्लियर. प्राइस रिलेटिव हाउ वी आर गेटिंग, चेक इट. P1 का प्राइस फर्स्ट कमोडिटी का P1 जो है 55 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 45. व्हाट आंसर वी आर गेटिंग 1.222 इंटू 100 यू हैव टू डू 122.22. सेम वे 70 डिवाइडेड बाई 60. 70 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100. सेम वे 116.67. ऐसे ही सबका मालूम करना है अपने को 6 कमोडिटीज का. 30 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 एंड 75 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100. 90 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100. 130 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100. आफ्टर दैट वी हैव टू write the sigma of P1 P0 into 100 753.1. just we have to substitute in the formula. P इसका प्राइस इंडेक्स क्या रहता है रिलेटिव मेथड्स का सिग्मा P1 P0 इंटू 100 जो भी आंसर आया बाई एन नंबर ऑफ कमोडिटीज से डिवाइड कर देना है. सो टोटल वी गॉट 753.1 डिवाइडेड बाई 6 कमोडिटी इट इज गिवन नो. सो योर आंसर विल बी 125.5166. वी आर गेटिंग, वी आर टेकिंग इज एट 125.517. दिस इज द रिलेटिव मेथड. रिलेटिव मेथड में अपने को कमोडिटीज P0 और P1 अपने को क्वेश्चन में से कॉपी कर लेना है. उसके बाद प्राइस रिलेटिव मालूम करना है. प्राइस रिलेटिव कैसा आता है अपने को P1/P0 इंटू 100. हर कमोडिटी की P1 की वैल्यू को P0 की वैल्यू से डिवाइड करके इंटू 100 करना. देन वी हैव टू डू द टोटल. जस्ट एट लास्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इनटू द फॉर्मूला. Sigma P1/P0 into 100 by n. N is nothing but your number of commodities. N is equal to 6 commodities is given now. So n is equal to 6. Now we'll see next. Calculate index price, average price, relative method by using arithmetic mean. Same 4 commodities it has given and prices of 2017 and 2018 is given. We have to copy it as it is. Price relative same way. P1/P0 into 100. 4/2 into 100. 8/6 into 100. 15/10 into 100, 5/5 into 100, 8/12 into 100. It's clear now. I am writing it here for all the commodities. 4 divided by 2 into 100. You will get 200. Then 8 divided by 6 into 100. Then 15 divided by 10 into 100. Then 5 divided by 5 into 100. Then 8 divided by 12 into 100. You will get this answer. You have to do the total 650. Then 650 divided by number of commodities, how many it is given? 1 2 3 4 5 is given. So 650 divided by 5 you will get 130 answer. Next question number 10. Compute price index by weighted average method. This is weighted average method, price relative method using arithmetic mean. In this quantity also it has given. Prices are given, base year and current year, and quantity of base year it has given. So commodities P0 Q0 बेस ईयर क्वांटिटी इज गिवन नो Q0 P1. बेस ईयर कभी भी दिए तो अपने को बेस में 0 लगाने का रहता. करंट ईयर जो भी देते उसमें 1 लगाने का रहता. ठीक है. तो यहाँ पर बेस ईयर तो P0, क्वांटिटी बेस ईयर बोले तो Q0, प्राइस करंट ईयर बोले तो P1. नो नेक्स्ट ये 3 कॉलम्स अपने को ऐड करने का रहता. P0 Q0 को V बोलते.
P0 Q0 मल्टीप्लाई करना ही है, 10 इंटू 160, 6 इंटू 180, 14 इंटू 120, 22 इंटू 40, 18 इंटू 80, V आ गया अपने को। उसके बाद P बाई P0 इंटू 100, P1 बाई P0 इंटू 100, रिलेटिव प्राइस रिलेटिव जैसा मालूम करते हैं ना अपन, P वही है ये, P1 बाई P0 इंटू 100, 16 बाई P1 is your 16, P0 is 10, 16 by 6, 10 into 100, 8 divided by 6 into 100, like that you will get P column. Then PV, ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स कॉलम मल्टीप्लाई करें तो अपने को PV कॉलम आ जाता। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिग्मा P01 इज इक्वल टू सिग्मा PV, ये आइसो आंसर का डिवाइडेड बाई सिग्मा V का टोटल करना है, P0 Q0 का जो कॉलम है ना अपने को उसका टोटल। सो जस्ट यू हैव टू डिवाइड दैट, 871,989.2 divided by sigma V we are getting 6680, so 130.537 we are getting. It means that there is an increase in price over base level by 130.537%. You have to write this. What we have done, once again I will repeat it. Commodities price base year, current quantity base year, price current year दे दी अपने को, वेटेड हमें में अपने को क्वांटिटी कैसा भी क्वेश्चन में गिवन रहती। कमोडिटीज P0 Q0 P1, ये क्वेश्चन में की कॉपी कर लिया अपन, 4 कॉलम्स, 3 कॉलम्स अपने को ऐड करना रहता, तो एक कॉलम V का बनाना रहता। V कैसा था आपको, P0 Q0, ये P के कॉलम को Q के कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखते जाना वैल्यू। देन P कैसा था आपको, P1 बाई P1 के कॉलम की फर्स्ट वैल्यू, P0 की फर्स्ट वैल्यू, दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 करना है। देन PV, ये जो भी आंसर आते हैं अपने को फिफ्थ कॉलम और सिक्स कॉलम के दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1600 इंटू 160, सी हियर 1600 इंटू 160, 2,56,000, गॉट इट नो। इन द सेम वे यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी आइटम ऑफ दिस V एंड P। सो आफ्टर दैट ऐड करना है PV, ये पूरे टोटल कर लेना है, प्लस 871,989.2 और P0 Q0 V, ये दोनों कुछ टोटल करना है अपने को, क्योंकि फॉर्मूले में अपने को प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा PV बाई V है, सिग्मा V है, तो सिग्मा PV का टोटल ले लिया अपन, सिग्मा V के टोटल को डिवाइड करें तो 130.53% आंसर वी आर गेटिंग।